যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম রে। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলায় আছি, পঞ্চম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 21 থেকে কন্টিনিউ করব। চৈতন্য চরিতামৃত অন্তলীলা 5.21 অনওয়ার্ডস। 21 নম্বর শ্লোক। মহাপ্রভুর ভক্তগণের দুর্গম মহিমা, মহাপ্রভু ভক্ত দুর্গম মহিমা, তাহে রামানন্দের ভাব, তাহে রামানন্দ ভাবে, ভক্তি প্রেম সীমা। ভক্তি প্রেম সীমা। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তদের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। कविराज गोस्वामी बोल रहा है, क्योंकि साधारण व्यक्ति फेल हो जाएगा रामानंद राय का आचरण देखकर, समझ नहीं पाएगा, मिसअंडरस्टैंड कर लेगा। এবং তাদের মধ্যে রামানন্দ রায় হচ্ছেন অদ্বিতীয়, কেননা তিনি প্রেম ভক্তি চরম স্তর প্রদর্শন করেছেন। चरम स्तर जो प्रदर्शन किया उसका आचरण तो हम लोग जैसे व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। তবে সেই দুই জনে নৃত্য শিখাইলা। दिलीप प्रभु बोलिए। তবে সেই দুইজনে নৃত্য শিখাইলা, গীতের গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইলা। গীতের গুণ অর্থ অভিনয় করাইলা। রামানন্দ রায় সেই দুইজন দেবদাসীকে মৃত্যুর মাধ্যমে গীতের গুণ অর্থ অভিনয় করার শিক্ষা দিলেন। ओके, डांसिंग के माध्यम से उस कीर्तन का जो अर्थ है वो समझाया। एक्चुअली ऐसे ही होता था। आप लोग अगर ध्यान से सोचिए, कोई भी लीला ले लीजिए, धेनुकासुर वध, ये भी मणिपुरी कुचिपुड़ी डांस में होता है। ओके, उसमें कोई एक धेनुकासुर बनेगा, कोई एक कृष्ण बनेगा, कोई बलराम जी बनेगा, और डांसिंग के माध्यम से उनका वध भी होगा। हाँ, आई डोंट नो आप लोग ऐसा कोई देखे हैं आगे भारतनाट्यम में या कोई, आई डोंट नो, मे बी वी कैन फाइंड आउट समथिंग एंड वी कैन शेयर, स्क्रीन शेयर एक बार हम लोग देखेंगे ये से कुछ। और आप में से अगर कोई कर भी सकते हैं, अगर कोई एक्सपर्ट है तो ठीक है। सो রামানন্দ রায় সেই দুইজন দেবদাসীকে নৃত্যর মাধ্যমে, ডান্সিং के माध्यम से গীতের গুরু অর্থ অভিনয় করে শিক্ষা দিলেন। সঞ্চারী সাত্বিক স্থায়ী ভাবেরও লক্ষণ। अशोक प्रभु। अशोक प्रभु नहीं है, महामंजरी माता जी नहीं है। ज्योति माता जी। हाँ, मुन्ना प्रभु बोलिए। संचारी सात्विक साई भावेर लक्षण। लक्षण हिंदी होगा तो लक्षण, बेंगली होगा तो लक्षण। সঞ্চারী সাত্বিক স্থায়ী ভাবের লক্ষণ। संचारी सात्विक स्थायी भावेर लक्षण। মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন। मुखे नेत्र अभिनय करे प्रकटन। और ये बेंगली आता है, पढ़ सकते हैं। नहीं प्रभु। তিনি তাদের শিক্ষা দিলেন কিভাবে মুখ এবং নেত্র ভঙ্গির দ্বারা অভিনয় করার মাধ্যমে সঞ্চারী সাত্विक এবং स्थायी भावेर लक्षण प्रकाश करते हैं। ये भाव का लक्षण ये आया था आगे। तो ये सब कैसे आंख से और फेस का एक्सप्रेशन से किया जाता है, तो ये रामानंद राय ने वो दो डांसर्स को सिखाया। आप में से किनको कोई भी ऐसे शास्त्रीय जो नृत्य है आप लोग ने ट्रेनिंग लिया है आगे, कोई है जैसे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी? Prabhu, I have not done Bharatnatyam. Classical dance I have not done, but I know I have done jazz, tap, ballet और भांगड़ा, ये सब मैंने किया है। वो तो फिर आएगा नहीं, ये तो शास्त्रीय नृत्य के बाद किया जा रहा है। ओके, अगला श्लोक। पाप प्रकटन लस्य राय जे शिखाए। ज्योति माता जी बोलिए। भार प्रकटन लक्ष्य राय जे शिखाए। জগন্নাথের আগে দুহে প্রকট দেখায়। जगन्नाथ और जगन्नाथेरा
আগে দুই প্রকট দেখায়। রামানন্দ রায় যেভাবে তাদের ভাব প্রকাশ করে নৃত্য করা শিক্ষা দিতেন, সেই অনুসারে তারা শ্রী জগন্নাথ দেবের সম্মুখে নৃত্য করতেন। তবে সেই দুই জনে প্রসাদ খাওয়াইলা, তবে দুইজনে সেই প্রসাদে খাইলা, নিভৃতে দুহারে নিজ ঘরে পাঠাইলা। এবাতে দু হাতে দুই ঘরে পাঠাইলা। তারপর রামানন্দ রায় তাদের ভগবত প্রসাদ খাইয়ে নিভৃতে তাদের স্ব স্ব গৃহে পাঠাতেন। প্রতিদিন রায় ঐছে করায় সাধন। दिलीप प्रभु बोलिए, दिलीप प्रभु जी बोलिए। 26 हाँ। নম্বর। প্রতিদিন রায় ঐছে করায় সাধন, প্রতিদিন রায়ছে করায় সাধন, কোন জানে ক্ষুদ্র জীব কাহা তার মন। কোন জানে क्षुद्र जीव कहा तारा मन। प्रतिदिन रामानंद राय, स्क्रीन ऊपर कीजिए। प्रतिदिन রামানন্দ রায় এই দুজনে দেবদাসীকে নিত্য শিক্ষা দিতেন। জড় ইন্দ্রিয় সুভোগে চিন্তায় মগ্ন কোনো ক্ষুদ্রজীব রামানন্দ রায়ের মনোভাব বুঝতে পারে। उससे पहले क्वेश्चन मार्क मैंने ऐसे पूछ रहे हैं कविराज गोस्वामी। यस ज्योति माता जी। प्रभु जी देवदासी, देवदासी क्यों बोला इनको? दे आर एकदम सर्वेंट्स ऑफ, जैसे हम लोग का भी जो देखिए किसी का भी अगर दीक्षा होता है माता जी का, तो उन लोग का नाम के बाद में लिखा रहता है ना, जैसे सुनीति राधिका देवीदासी। तो वैसे they are supposed to be eternal servants of Krishna, eternal servants of Lord Jagannath in this case. ठीक है? But प्रभु जी they are professional dancers ना, हम लोग ने पढ़ा था। For Lord. Okay. है हाँ, बट ऐसा नहीं कि बाहर को करेगा, ऐसा नहीं है। They will dance anywhere. No, they are exclusively for Jagannath, Devdasi. Okay. Yes, प्रभु। शशि माता जी, ये आगे पेशादार वर्ड आया था क्या प्रोफेशनल के लिए? यस हाँ। प्रभु जी, पेशेवर आया था। आया था। यस, दिलीप प्रभु कंटिन्यू। শ্রী কৃষ্ণের তাৎপর্য, শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বিধানের জন্য রামানন্দ রায়ের গোপী সেবা সম্পূর্ণ চিন্তনের বিষয়ে চিন্তনের তরে অতিরিক্ত না হলে রামানন্দ রায়ের कार्यकलाप हृदय रंगम करा असंभव। रामानंद राय गोपी सेवा संपूर्ण रूपे चिन्मय विषय। रामानंद राय का जो ये गोपी सेवा है, याद है आप लोग को? ये सब ये गोपी था, ये डांसर्स, और रामानंद राय उन लोग का सेवक है। तो ये सब एकदम स्पिरिचुअल लेवल में है। साधारण व्यक्ति इसको समझ नहीं पाएगा कि गोपी का सेवा कैसे कर रहा है। बोलेगा कि अरे भाई एक पुरुष एक स्त्री का सेवा कर रहे हैं, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। ये नॉनसेंस नहीं है, ये चिन्मय स्पिरिचुअल सेवा है। चिन्मय स्तरे अधिष्ठित ना होले रामानंद राय कार्यकलाप हृदयंगम करा असंभव। यस ज्योति माता जी। प्रभु जी गोपी सेवा नहीं समझ में आया। गोपी का आया सेवा था आगे आया था श्लोक में आया था। आई थिंक 1-2 दिन आगे आया था। नहीं, कल ही तो आया होगा, ये तो चैप्टर जस्ट शुरू हुआ। देखना पड़ेगा कौन सा श्लोक। माता जी, शशि माता जी देखिए तो कौन सा श्लोक में है। 20 नंबर प्रभु जी, 20 नंबर का तात्पर्य में सब आया था। तो मैं जस्ट मैं बता रहा हूँ, ये जो डांसर्स है दे आर एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दे आर कंपेयर्ड टू गोपीज। यहाँ पे आया था तात्पर्य में प्रभु जी। प्रभु जी इसमें तो बोल रहे हैं दे आर टू प्ले द पार्ट ऑफ द गोपीज, ऐसा तो नहीं बोला कहीं पे। they were गोपीज। यस, शशि माता जी एक बार पढ़िए। अतएव रामानंद राय जो कि उन कन्याओं को गोपियां और स्वयं को उनकी दासी मानते थे, स्वयं ही उनके शरीर को पूरी तरह स्वच्छ रखने के लिए तेल की मालिश करते थे। बस सो रामानंद राय इज टू कंसीडर देम टू बी गोपीज एंड खुद को उन लोग के दासी। तो प्रभु जी रामानंद राय कंसिडर करते थे ना, एक्चुअली वर दे गोपीज? हैज टू बी। रामानंद राय इज साक्षात अर्जुन एंड विशाखा देवी's avatar. If he considers something, there is no doubt about it. ओके ओके। बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु बोल रहे हैं कि ये कोई विधान में है लिखा शास्त्रीय यह है कि स्नानम मर्दनम तेल मर्दन माने करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हाँ 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 नहीं लिखा है कहीं, नहीं करना चाहिए एक्चुअली देखा जाए तो। लेकिन यहाँ केस अलग है। अच्छा।
ये कोई साधारण व्यक्ति करेगा तो ये एकदम पूरा क्रिमिनल केस हो जाएगा। लेकिन ना वो तो सोच के बाहर ही है, लेकिन फिर भी ये हमारे पूजा विधान में या सेवा विधान में कहीं भी तो नहीं आया कभी भी। नहीं आया क्योंकि हम लोग उस स्तर पे नहीं है। हम लोग जैसे बद्ध जीव के सेवा विधान में कभी आएगा नहीं ये लिस्ट में। लेकिन रामायण नहीं, ये हमारे गीता में भी नहीं आया, भागवतम में भी अभी तक नहीं आया, चैतन्य चरितामृत में भी नहीं आया, अभी अभी आ रहा है यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में। हाँ तो और बाकी लोगों की सेवा भी तो बहुत दिनों से हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन इस तरह का विधान कहीं दिखाई नहीं दिया। इस तरह का प्रसंग उठा नहीं, इस तरह का प्रसंग उठा नहीं। ठीक है, ठीक yes. ठीक। लेकिन we have to understand the situation here. ये प्रभुपाद बार बार इसके बाद में परपट में बताया है, कल हम लोग सुना है कि इसको कभी अनुकरण नहीं करना चाहिए। ये आया था कल, एक दो बार आया था, है ना। श्रील प्रभुपाद बार बार वार्निंग कर रहा है, दिस इज जस्ट टू बी अंडरस्टूड एंड अप्रिशिएटेड। सोचना चाहिए, समझना चाहिए और अप्रिशिएट कीजिए, बस फुल स्टॉप। ऐसे भी महाप्रभु आज बोलेंगे ये अद्वितीय है, मतलब ऐसा कोई दूसरा है नहीं, रामानंद है, मतलब उनके लेवल का कोई है ही नहीं। और महाप्रभु ये भी बताएंगे कि मेरा उतना इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है, हालांकि वो तो साक्षात भगवान है, लेकिन उनका अप्रिशिएट करने के लिए महाप्रभु आगे बताएंगे रामानंद राय जितना उनका जो जितना इंद्रिय उनके संयम में है, मेरा भी उतना नहीं है। रामानंद राय का पोजीशन बता रहे हैं ना कि वो उनपे कोई निर्विकार, मतलब कोई विकार ही नहीं आया, वो ऐसा किया तो उनपे कोई विकार ही नहीं आया। बस खाली यही बताना चाहते। तो ये भी तो निर्विकार नहीं आने का कारण भी तो भगवान ही है, और कौन है? हाँ, बोल सकते हैं। प्लस उनका भगवान के प्रति भाव, श्रद्धा, ये भी है। जो सरेंडर हो गए हैं, तो ये उनमें जो लक्षण है वो तो सब भगवान के द्वारा ही वर्तित होंगे ना। हमें भगवान के द्वारा तो इस हिसाब से बोलने से फिर तो जीव को जीरो क्रेडिट देना पड़ेगा। एवरीथिंग इज बिकॉज पहला उंगली को इग्नोर मत कीजिए। पहला उंगली क्या था? जीव का प्रयास। तो इसको इग्नोर मत कीजिए। अगर इफ यू से एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ कृष्णा, ऑफ कोर्स इट इज बिकॉज ऑफ कृष्णा, बट जीव आल्सो हैज जीवा अपना सीमित स्वतंत्रता का तो इस्तेमाल भी किया अच्छा से ना। वो भजन में आया है ना, श्रद्धा, मतलब उसका उनका श्रद्धा उतना प्रगाढ़ है, तब उनको वो लेवल मिला है ना। तो वो श्रद्धा भी आप बोलेंगे नहीं, वो श्रद्धा भी भगवान की कृपा से। अरे फिर कुछ भी बात की नहीं रहा है फिर जीव के लिए। जीव जो अपना सीमित स्वतंत्रता को अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, सुबह उठकर आप लोग क्लास कर रहे हैं, आप बोलेंगे ये भी भगवान की इच्छा से। हरे कृष्ण। तब आपने कुछ किया ही नहीं किया फिर। हरे कृष्ण। यस, पंकज मित्र, राजेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसके पहले एक वो कथा में आता ना, विद्या वाचस्पति के पास में वो भेजते हैं हम लोग को, वो सीइंग द डांसर्स के साथ में वो बैठे रहते हैं, फिर वो शायद गदाधर पंडित जाते हैं और हमको ठीक से याद नहीं आ रहा प्रभु जी। तो फिर वो जैसे नाम लेते हैं वो लोग भगवान का, तो फिर विद्यावती में आ जाते हैं। पुंडरीक विद्यानिधि के पास जाते हैं। विद्यानिधि वो तो अलग था। वो तो जब श्लोक सुनता है तो उनका सात्विक विकार बाहरी स्तर से देखे तो वो भी विषय या ऐसा लग सकता है, लेकिन वो भी हाई लेवल में एकदम एक्सॉल्टेड महाराज का अवतार। इसीलिए गदाधर पंडित ने लास्ट में उनसे दीक्षा लिया ना, उनके प्रति अपराध हो गया था, क्योंकि उन्होंने उनको साधारण व्यक्ति सोचा था। यस, पान चबा रहा था ऐसे करके, पोशाक भी अलग कुछ, और आसपास में सब उनका। ये आया था क्या? ये शायद हुआ है, पता नहीं। नहीं, आई डोंट थिंक सो। पुंडरीक विद्यानिधि का सब हुआ। आई डोंट रिमेम्बर। यस, ज्योति माता जी। प्रभु जी, ये दिस इज, हम ये बोल सकते हैं ना कि भगवान जीव को यहाँ भेजते हैं क्योंकि वो अपना फॉल्स ईगो के कारण आता है, क्योंकि उसे एंजॉय करना है मटेरियल वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली। पर भगवान उसे थोड़ी लिटिल फ्रीडम देते हैं, इंडिपेंडेंस थोड़ा देते हैं, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दैट फ्रीडम वी कैन चूज कि हमें भक्ति का मार्ग चुनना है कि हमें और कोई सत्कर्म का मार्ग चुनना है, अदर path we have to choose. So that little independence God gives us. वो हमें थोड़ा अल्प स्वतंत्रता देते हैं, and because of that we do our प्रयास। वो एक फिंगर जो आपने बताया, वो उसी के पहला फिंगर देखिए भक्तों का प्रयास है, पहला फिंगर भगवान का कृपा नहीं है। सो अगर कोई उसीलिए बोलता है कि कोई अगर एक कदम बढ़ाता है तो भगवान 10 कदम बढ़ाता है, लेकिन सोचिए पहला कदम किनको बढ़ाना पड़ेगा, भगवान को या भक्त को?
भक्त को हाँ, ये मत भूलना चाहिए कि पहला प्रयास होना चाहिए। उसीलिए इंग्लिश में कथा भी है ना, बोलता है ना, गॉड हेल्प्स देम दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। हाँ, वही जो भी है। आई थिंक गॉड हेल्प्स देम दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। सो मैंने भगवान उनका ही सहायता करता है जो पहले खुद कुछ करता है। यस, श्यामा ब्रज सुंदर प्रभु फ्रॉम अकबरपुर धाम। नहीं पर काशी में है। हाँ, हरि बोल, बनारस धाम की जय। बोले आप तो स्वीकृति की भी बात करते हैं ना, पिछले जन्म में स्वीकृति हो तो तभी भक्ति मिलता है। तो पिछले स्वीकृति ना हुआ तो फिर कैसे प्रयास कहाँ काम किया? पिछले जन्म में स्वीकृति भी तो अपना कर्म से ही होता है ना। पिछले जन्म स्वीकृति तो ऐसा नहीं कि लॉटरी खेल के कुछ टिकट मिल गया उसीलिए स्वीकृति का टिकट मिल गया मेरे पास। देखो, ऐसा तो नहीं है। कुछ किया, अच्छा काम किया, उसीलिए स्वीकृति हुआ। तो पूर्व जन्म हो, किसी जन्म में प्रयास किया होगा ना प्रभु जी। हाँ, पूर्व जन्म हो, इस जन्म हो, लेकिन जीव का तो प्रयास को उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते बोल करके ठाकुर जी का कृपा हुआ उसीलिए हुआ। ओके, देखिए शिल प्रभुपाद भी उस हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे उस दिन के, शिल प्रभुपाद ने कुछ भक्त लोग को बोला कि तुम्हारा कुछ क्रेडिट नहीं था, तुम्हारा 0 क्रेडिट था, मेरे कृपा से तुमको ये भक्ति मिला एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन क्रेडिट नहीं था, ठीक है, मानता हूं, लेकिन कम से कम उतना श्रद्धा तो था कि शिल प्रभुपाद पे शरणागत हुआ, वही तो उनका क्रेडिट है। एटलीस्ट दे हेल्प सो मेनी पीपल। शिल प्रभुपाद अप्रोच्ड, everybody turned. No, his own children didn't turn. Forget about others. Yes, हिरण्मय गौरांग प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो भागवत में तो ऐसा है कि भगवान हम लोग से अच्छा काम कि बुरा काम कराते हैं, मैंने पाप पुण्य के लिए। ऐसे भी एक तो श्लोक है कि भगवान जब चाहते हैं कि हम लोग पुण्य करें तो हम लोग को ऐसे काम कराते हैं हमारे थ्रू में। अच्छा, I don't know what context you are talking about, मुझे समझना पड़ेगा। Yes, महामंदिर माता जी कहाँ है? Absent? वो दिल्ली में है अभी। ओके, डिस्टर्ब है। ओके। तो एक कथा में ऐसा बताया जा रहा था कि जीव की अनंत इच्छा है, उसमें से जो इच्छा उनके जिस टाइम पे प्रबल होती है उसी हिसाब से उसको वो एलोकेशन होता है कि उनसे कौन सा कर्म करवाया जाएगा। अगर उनके मन में वो ऐसा कोई डिजायर रहेगा तब वो पाप कर्म करेगा, उसके मन में कुछ ऐसा डिजायर रहेगा तब वो पुण्य कर्म करेगा। डिजायर के हिसाब से होता है, डिजायर जीव का रहता है तभी भगवान उसको उस तरफ उत्साहित करते हैं। यस, भगवान उसको और फैसिलिटी देता है, चाहे वो पॉजिटिव डिजायर हो नेगेटिव डिजायर हो, दोनों को फुलफिल करने के लिए भगवान आयोजन कर देता है। ओके, अब हम लोग 25 नंबर श्लोक, तो कितना नंबर श्लोक कराएंगे? 77। निःश्रेयर, अच्छा लास्ट वाला अनुवाद एक बार तात्पर्य पढ़ लेते हैं। श्री कृष्ण आनंद विधाনের জন্য রামানন্দ রায় গোপী সেবা সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় বিষয়। चिन्मय स्तरे अधिष्ठित ना होले रामानंद राय कार्यकलाप हृदयंगम करा असंभव। हम लोग फिर भी थोड़ा अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। हम लोग कोई जो हम लोग अभी अटेंड कर रहे हैं क्लास, कोई इस चीज को खराब वैसे ले रहे हैं क्या? रामानंद राय इन लोग का सेवा कर रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत जप करते हैं और इतना दिन से क्लास से जुड़े हैं, प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़े हैं, तो हम लोग का थोड़ा कुछ तो हुआ है कि इसको अप्रिशिएट कर पाए। कोई तो डिप्रिशिएट नहीं कर रहा है, आई एम श्योर। चिन्मय स्तरे अधिष्ठित ना होले रामानंद राय कार्यकलाप हृदयंगम करा असंभव। 27 নম্বর শ্লোক। মিশ্রের আগমন রায়ে সেবক কহিলা, মিশ্রের আগমন রায়ে সেবক কহিলা, শীঘ্র রামানন্দ তবে সভাতে আইলা। শীঘ্র রামানন্দ তবে সভাতে আইলা। এক্সিলেন্ট, ভেরি গুড মেমোরি পাওয়ার। রামানন্দ রায়ের সেবক যখন তাকে প্রদ্যুম্ন মিশ্রের আগমনের কথা জানালেন, তৎক্ষণাৎ रामानंद राय सभा गृहे गेलेन। ओके, तो सेवक जाकर बोले रामानंद राय के somebody had come, कोई आया आपसे मिलने के लिए। प्रद्युम्न मिश्र बोले उनका नाम। मिश्रेर नमस्कार करे सम्मान करिया। अशोक मिश्रा प्रभु का टर्न है ना, शशि माता जी? यस प्रभु जी। मिश्रेर नमस्कार करे सम्मान करिया, निवेदन करे किछु विनीत हइया।
নিবেদন করে কিছু বিনীত হইয়া। বহুক্ষণ আইলা মোরে কেহ না কহিল, বহুক্ষণ আইল মোরে কেহ না কহিল, তোমার চরণে মোর অপরাধ হইল। তোমার চরণে মোর অপরাধ হইল। তোমার আগমনে মোর পবিত্র হইল ঘর। তোমার আগমনে মোর পবিত্র হইল ঘর। আজ্ঞা করো কা করে, আজ্ঞা করো কা করো, তোমারও কিঙ্কর। আজ্ঞা করো কা করো, তোমারও কিঙ্কর। শ্লোকার্থ। एक सेकंड, তিনি গভীর শ্রদ্ধা সহকারে। एक सेकंड प्रभु जी। ज्योति माता जी, प्रभु जी सेकंड टाइम रामानंद राय से भेंट होता है ना ये प्रद्युम्न सेकंड, ये मिश्रा का। सेकंड वाला। आफ्टर महाप्रभु से मिलने के बाद उनको जब रामानंद राय के बारे में पता चला, फिर वापस गया प्रद्युम्न मिश्रा अभी, ठीक है, फिर से मिलने। नहीं नहीं प्रभु जी, ये तो डायरेक्ट ही बता दिए। वो एक बार गए, उनके सर्वेंट्स बोले, उसके बाद वो वेट किए और बताया। फिर यहाँ पे सब रामानंद राय के बारे में वो गोपी लोग को गए और रामानंद राय आ गए वापस। मतलब रामानंद राय उधर तो गए ही नहीं। ये फर्स्ट मिलन है, सॉरी, फर्स्ट टाइम। हाँ, क्योंकि वो बोले ना कि ना पहले रामानंद राय आए थे मिलने, फिर वो नहीं थे। मतलब प्रद्युम्न मिश्रा आए, रामानंद राय नहीं मिले, तो वो चैतन्य महाप्रभु के पास वापस गए। इंट्रोडक्शन में बताया था। हाँ, तो अभी नहीं गया। अभी हम लोग जहाँ हैं श्लोक नंबर 28 में, अभी तक महाप्रभु से जाकर क्लैरिफाई नहीं हुआ प्रद्युम्न मिश्रा का। अच्छा, ठीक है, वो वेट कर रहा था, अभी वेट कर रहा हाँ। तो फिर अभी सर्वेंट जाकर अंदर बोला रामानंद राय के कोई आया आपसे मिलने, तो रामानंद राय भी आकर पहले बार मिल रहे प्रद्युम्न मिश्रा से। हाँ, लेकिन पहले बार मिले नहीं प्रभु। इसमें देखिए इंट्रोडक्शन में लिखा है, श्री रामानंद राय वॉज ट्रेनिंग द देवी दासी डांसिंग गर्ल्स इन द टेम्पल, एंड व्हेन प्रद्युम्न मिश्रा लर्नड अबाउट दिस, ही रिटर्न टू चैतन्य महाप्रभु। ये रिटर्न राजीव बम प्रभु, आप तो क्विज बनाए, आपको आगे से मालूम है आगे क्या है। ये पहला मीटिंग है, सेकंड मीटिंग है? पहला मीटिंग है। अभी बात होगा, लेकिन कृष्ण कथा नहीं होगा। महाप्रभु पूछेंगे तुमने सुना है क्या, अभी उसके बाद आएगा वो। ठीक है, ओके श्लोकार्थ। তিনি গভীর শ্রদ্ধা সহকারে প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে প্রণতি নিবেদন করলেন এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে তাকে বললেন, আপনি অনেকক্ষণ এসেছেন, কিন্তু কেউ সে কথা জানায়নি। তাই আপনার চরণে আমার অপরাধ হয়েছে। আপনার আগমনে আমার গৃহ পবিত্র হয়েছে। আপনি আদেশ করুন, আপনার এই সেবক আপনার জন্য কি করতে পারে। মিশ্র কহে তোমার দেখিতে হইল আগমনে। दिलीप प्रभु जी। মিশ্র কহে তোমার দেখিতে হইল আগমনে। আপনা পবিত্র কইলু তোমার দর্শনে। আপনা পবিত্র কইল তোমার দর্শনে। শোকার্থ। প্রদ্যুম্ন মিশ্র তখন তাকে বললেন, আমি কেবল আপনাকে দর্শন করতে এসেছিলাম। আপনাকে দর্শন করে আমি পবিত্র হলাম। অতিকাল দেখি মিশ্র কিছু না কহিল। অতিকাল দেখি মিশ্র কিছু না কহিল। বিদায় হইয়া মিশ্র নিজ ঘর গেল। বিদায় হয়ে মিশ্র নিজে ঘর গেল। तो देखिए कृष्ण कथा सुनने आया, लेकिन बोला कि नहीं आपको सिर्फ दर्शन करना है, तो हमारा पेट भर गया, अभी हम जा रहे हैं। हाँ देखिए, कृष्ण कथा सुनने के लिए गए थे ना, लेकिन नहीं सुना। অনেক দেরি হয়েছে দেখে প্রদ্যুম্ন মিশ্র রায়কে, রামানন্দ রায়কে কিছু বললেন না। তারপর তার কাছ থেকে তিনি ঘরে ফিরে গেলেন। আর দিন মিশ্র আইল প্রভু বিদ্যা মানে। ये सुमना गौरंगी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। फिर प्रभु ये क्यों बोल रहे हैं कि आपको दर्शन करके मैं पवित्र हो गया, अपने आप को पवित्र कर लिया। अभी इसको सार्कास्टिकली बोलिए या सचमुच में भी पवित्र ही हो गया। रामानंद राय एक्सॉल्टेड दर्शन है, आई मीन एक्सॉल्टेड डिवोटी है। आई मीन ये तो कुछ प्रभुपाद ने कुछ लिखा नहीं। तो वो ऐसा बोला नहीं कि उनसे सुनना नहीं चाहते थे। यहाँ खाली बोला कि लेट हो गया बोल के वो फिर उस प्रसंग को छेड़े नहीं। हाँ, तो लेट हो गया, उसे चले गए। लेकिन अभी ये लेकिन मन में तो उनका संशय आया ना प्रभु, मन में तो संशय है। संशय तो है, लेकिन ये जो पवित्र हो गया, ये सचमुच ऑनेस्टली बोला या सार्कास्टिकली बोला? हाउ वी कैन गेस? प्रभुपाद जब तक कुछ नहीं बोलेंगे हम लोग गेस तो नहीं करना चाहिए।
बस इसको एज इट इज लीजिए आगे। आई मीन ये सब सिचुएशन में जहां क्लियर कट कुछ नहीं है उसमें तो जस्ट उसको एज इट इज लेना पड़ेगा। जहां कुछ हिंट है कुछ तो थोड़ा हम लोग गेस कर सकते हैं। आप ऐसे लोग- भी यहाँ पे जो जो घटना हुआ है, रामानंद राय जो कर रहे हैं, पूरा उनको तो पता नहीं है। उनको जस्ट खाली उसके सर्वेंट ने जितना बताया उनको पता है, और बाकी जो बताया गया वो तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी खुद बता रहे हैं। हम मतलब हम पाठक को बता रहे हैं, वो तो उनको नहीं पता अभी तक प्रद्युम्न मिश्र को टोटल। उनको खाली वो सर्वेंट ने बोला कि वो देवदासी को बागान में थोड़ा नृत्य सिखा रहे हैं, और क्या क्या कर रहे हैं वो तो डिटेल्स में वो नहीं बता रहे वहाँ पे। कविराज गोस्वामी ने हम लोग को बताया, बट मे बी वो पूरा डायलॉग्स जो कॉन्वर्सेशन बिटवीन सर्वेंट एंड प्रद्युम्न मिश्र वो हम लोग को मालूम नहीं है। मे बी एनीवेज देखते हैं आगे। महाप्रभु को कुछ रिपोर्ट करता है क्या? यस प्रभु जी, महाप्रभु बोलेंगे मेरे मन में विकार आता है। नहीं, ये डिटेल्स रिपोर्ट करता है क्या? हाँ, वो खाली yes. बोलते हैं कि जो तो भी वो घटना हुई- महाप्रभु आगे पूछ रहे हैं रामानंद उनसे। ओके, देखते हैं वहाँ पे लेटेस्ट। लिखा है जो भी घटा वो बताया। अब क्या घटा क्या बताया वो क्लियर नहीं। अच्छा वही ये सब सिचुएशन में जस्ट एज इट इज लीजिए इसको, और कुछ स्पेकुलेशन बट नहीं करना अच्छा रहेगा। অনেক দেরি হচ্ছে। আচ্ছা, আর দিন মিশ্র আইলা, তারপরের দিন कहाँ है हम लोग? कौन पढ़ रहा था? আর দিন মিশ্র আইলা প্রভু বিদ্যা মানে, अशोक प्रभु আর पढ़िए। দিন মিশ্র আইল প্রভু বিদ্যমানে, প্রভু কহে কৃষ্ণ কথা শুনাইলা রায় স্থানে। প্রভু কহে কৃষ্ণ কথা শুনিলা রায় স্থানে। শ্লোকার্থ। তারপরের দিন প্রদ্যুম্ন মিশ্র চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে গেলেন। তখন মহাপ্রভু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, রামানন্দ রায়ের কাছে তুমি কৃষ্ণ কথা শুনলে? यस, अशोक प्रभु कंटिन्यू। তবে মিশ্র রামানন্দের বৃত্তান্ত কহিলা, তবে মিশ্র রামানন্দের বৃত্তান্ত কহিলা। শুনি মহাপ্রভু তবে কহিতে লাগিলা, শুনি মহাপ্রভু তবে কহিতে লাগিলা। আমি তো সন্ন্যাসী আপনারা বিরক্ত, আমি তো সন্ন্যাসী আপনারা বিরক্ত করি মানি, আমি তো সন্ন্যাসী আপনারে বিরক্ত করি মানি। দর্শন রঘু দূরে প্রকৃতির নাম যদি শুনি, দর্শন রহু দূরে প্রকৃতির নাম যদি শুনি। তবহি বিকার পায় মোর তনু মন, তবহি বিকার পায় মোর তনু মন। প্রকৃতি দর্শনে স্থির হয় কুঞ্জন, প্রকৃতি দর্শনে স্থির হয় কুঞ্জন। রামানন্দ রায়ের কথা শুনো সর্বজন, রামানন্দ রায়ের কথা শুনো সর্বজন। এবার কথা নহে যাহার আশ্চর্য কথন, কহিবার কথা নহে যাহা আশ্চর্য কথন। তখন প্রদ্যুম্ন মিশ্র রামানন্দ রায়ের সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে খুলে বললেন, এবং সে কথা শুনে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে বললেন, আমি সন্ন্যাসী এবং বিয়ের বিষয়ের প্রতি বিরক্ত। স্ত্রী লোক দর্শন করা দূরে থাকুক, তাদের নাম শুনলে পর্যন্ত আমার দেহ ও মনে বিকার হয়। তাই স্ত্রীলোক দর্শন করে কে স্থির থাকতে পারে, তা অত্যন্ত কঠিন। রামানন্দ রায়ের কথা সকালে শ্রবণ করো। তার কার্যকলাপ এমনই আশ্চর্য যে তা বলে বোঝানো যায় না। कंटिन्यू प्रभु। प्रभु जी यहाँ पे महाप्रभु जो बोल रहे हैं वो जस्ट रामानंद राय का ग्लोरिफिकेशन के कारण मतलब बोल रहे हैं ना, कि स्त्री लोग के नाम सुनने से मेरे मन में विकार आता है। महाप्रभु तो स्ट्रिक्ट सन्यासी है, मतलब वो भगवान छोड़ दीजिए, भगवान वाला पोर्शन हम अगर बात भी दे तो ऐसे भी वो जिस स्तर में है यहाँ वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट खाली ग्लोरीफाई करने के लिए ये बोल रहे हैं। एब्सोल्युटली। उनके प्रति श्रद्धा बढ़ाने के लिए प्रद्युम्न मिश्र के हृदय में महाप्रभु ये बता रहे हैं। अदरवाइज तो महाप्रभु क्योंकि देखिए लास्ट वाले जो 37 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं ना, सभी लोग कृपया रामानंद राय के विषय में इन बातों को सुनो, यद्यपि वे इतनी अद्भुत तथा असामान्य है कि उन्हें कहा नहीं जाना चाहिए। तो यहीं पे पता लग रहा है उनका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। यस, संशय दूर कर रहे हैं उनका, कि इसमें संशय का कोई जगह नहीं है। आपका भी दूर हो रहा है? हाँ जी प्रभु, मेरा भी दूर हो रहा है। একে দেবদাসী আর সুন্দরী তরুণী, একে দেবদাসী আর সুন্দরী তরুণী,
তার সব অঙ্গ সেবা করেন আপনি, তার সব অঙ্গ সেবা করে না আপনি, স্নানাদি করায় পরায় বসন বাস বিভূষণ, স্নানাদি করায় পরায় বাস বিভূষণ, গুজ্জ অঙ্গের হয় তাহা দর্শন স্পর্শন, গুজ্জনদের হয় তাহার দর্শন স্পর্শন, প্রভু নির্বিকার রায়ে রামানন্দের মন, তবু নির্বিকায় রায় রামানন্দের মন, নানা ভাবোদ্গার তারে করায় শিখন, নানা ভাবোদ্গার তারে করায় শিক্ষণ, নির্বিকার দেহ মন কাষ্ঠ পাষাণ সম, নির্বিকার দেহ মন কাষ্ঠ পাষাণ সম, আশ্চর্য তরুণী স্পর্শে নির্বিকার মন, আশ্চর্য তরুণী স্পর্শে নির্বিকার মন, এক রামানন্দের হয় এই অধিকার, এক রামানন্দের হয় এই অধিকার, তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাহার, তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাহার, আহার মনের ভাব দেহ জানে মাত্র, তাহার মনের ভাব দেহ জানে মাত্র, তাহার মনের ভাব দেহ জানে মাত্র, তাহার মনের ভাব দেহ জানে মাত্র, তাহা জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র, তাহা জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র। একে দেবদাসী, তার উপর তারা ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী তরুণী, আর রামানন্দ রায় নিজে তাদের অঙ্গ সেবা করতেন, স্নান করাতেন, কাপড় পরাতেন এবং অলংকার দিয়ে সাজাতেন। তার ফলে তাদের শরীরে গোপন অঙ্গের দর্শন হতো, স্পর্শন হতো, তবু রামানন্দ রায়ের মনে কোনো বিকার হতো না। তিনি তাদের নৃত্যের মাধ্যমে ভগৎ ভক্তির দিব্য ভাব ব্যক্ত করার শিক্ষা দিতেন। তার দেহ মন কাঠ ও পাষাণের মতো নির্বিকার ছিল। সুন্দরী তরুণীর স্পর্শেও তো যে তার মনে কোনো বিকার হতো না, তা অত্যন্ত আশ্চর্য বিষয়। এই অধিকার কেবল রামানন্দ রায়েরই রয়েছে এবং তার ফলে বুঝতে পারি যে তার দেহ অপ্রাকৃত। So Sanatan Goswami is known for renunciation. Ramananda Rai is known for sense control. তাহার মনের ভাব তেহ জানে মাত্র, তার মনের ভাব होता है यही अभिभाव है। হ্যাঁ ভাই নেই চলেগা, তাহার মনের ভাব তেহ জানে মাত্র, সাউন্ড আছে বলতে পারবো না। yes next please, इसकी स्क्रीन ऊपर তাহার মনের ভাব তেহ জানে মাত্র, তাহার মনের ভাব তেহ জানে মাত্র, তাহার মনের ভাব তেহ জানে মাত্র, তাহা জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র, তাহা জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র, কিন্তু শাস্ত্র দৃষ্টে এক করি অনুমান, কিন্তু শাস্ত্র দৃষ্টি এক করি অনুমান, শ্রী ভাগবত শাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ, শ্রী ভাগবত শাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ, ব্রজবধূ সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস, ব্রজবধূ সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস, এই জন কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস, যেই জন কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস, হৃদরোগ কাম তার তৎকালে ক্ষয় ক্ষয়, হৃদরোগ কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়, তিন গুণ খুব নহে মহাধীর হয়। तीन गुण खूब नहे महाधीर होय। ये सच माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये श्लोका 42 में अनुवाद में लिखा, ऐसे कार्यों पर एकमात्र रामानंद राय का जन्म सिद्ध अधिकार। जन्म सिद्ध लिखा है, अच्छा प्रश्न क्या है? तो जन्म सिद्ध अधिकार मतलब क्या हुआ? बॉर्न राइट, अधिकार ही लीजिए इसको। जस्ट टेक इट बर्थ राइट, माने उसको अधिकार को और एम्फसाइज करने के लिए लिखा है बर्थ राइट, राइट इनका ही अधिकार है, इनका जन्म सिद्ध अधिकार है, माने एक्सक्लूसिविटी दिखाने के लिए, एक्सक्लूसिविटी, और कोई नहीं इसका ऐसा अधिकार किसी का में नहीं है। মিউট জ্যোতি মাতাজি। তার মনের ভাব কেবল তিনিই জানেন, তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় কেউ তা জানেন না। इसलिए देखिए कोई सेकंड नहीं है इतने ब्रह्मांड में, महाप्रभु खुद को भी नहीं मानते हैं, तो इसीलिए जन्म सिद्ध।
কিন্তু তার ফলে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে আমি একটি কথা অনুমান করতে পারি এবং শ্রীমদ্ ভাগবতে হচ্ছে তার প্রমাণ। কেউ যখন সুদৃঢ় বিশ্বাস সহকারে ব্রজবধূর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাস লীলা বিলাস শ্রবণ করেন এবং কীর্তন করেন, তৎক্ষণাৎ তার কামরূপ হৃদরোগ নিরাময় হয় এবং প্রকৃতির 3টি গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে महाधीर हन। हरि बोल। ये और भी है, अभी महाप्रभु बोल रहे और भी है लिस्ट में, अभी ये श्लोक बताया फिर। ये सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु ये 44 नंबर श्लोक में किंतु मैं शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार अनुमान कर सकता हूँ, मतलब तो पहले तो बोला अद्वितीय नहीं, ये क्लियर है ना, और कोई सेकंड है नहीं। लेकिन फिर अभी महाप्रभु बोल रहा है लेकिन और भी अद्वितीय है, और भी है। कौन कौन है? जो ये रासलीला बहुत मन देकर सुनता है, हृदयंगम करता है, हाँ, अभी जो बहुत विश्वास से ये रासलीला श्रवण करता है, तो उसका क्या होता है? काम रूप हृदरोग निरामय है, काम एकदम मिट जाता है এবং প্রকৃতি 3 গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে তিনি মহাধীর ব্যক্তি हो जाता है। तो ये भी व्यक्ति है जो रामानंद राय के स्तर पे हो सकता है। यस, सुमना गौरंगी माता जी, ज्योति माता जी। प्रभु जी ये समझ में नहीं आया 44 श्लोक। द वैदिक स्क्रिप्चर श्रीमद् भागवत गिव द करेक्ट एविडेंस इन दिस मैटर। कौन से मैटर में प्रभु जी? ये जो रामानंद राय का मैटर में जो ही इज आई मीन टचिंग द प्राइवेट पार्ट्स एंड ऑल दिस तो ये कोई बहुत एक्सट्रीम है, तो इसका कोई अद्वितीय सेकंड नहीं है। लेकिन फिर बोलते हैं महाप्रभु, लेकिन हमने सुना है शास्त्र में भी, কিন্তু তার ফলে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে আমি একটি কথা অনুমান করতে পারি। তিনি ছাড়া আর অদ্বিতীয়, তার মনের ভাব কেবল তিনিই জানেন, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় সেকেন্ড कोई है नहीं। लेकिन কিন্তু তার ফলে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে আমি একটি কথা অনুমান করতে পারি এবং শ্রীমদ্ ভাগবতে তার প্রমাণও আছে। क्या प्रमाण है प्रभु जी? कोई है? ये कि इस स्तर पे पहुंच सकता है कोई पहुंच सकता है? अद्वितीय नहीं है और भी है। पहले बोलते अद्वितीय है, इनके कोई और है नहीं, फिर बोलते नहीं, लेकिन आई थिंक देयर आर मेनी केसेस आल्सो। और श्रीमद् भागवतम में पता चलता है हमको। हाँ, श्रीमद् भागवत पर के 10वां स्कंद में जो रासलीला का उसमें तो ये सब वर्णन है। अच्छा, रासलीला का वर्णन। श्रीमद् भागवते হচ্ছে তার प्रमाण, वहां मिल सकता है इसका एविडेंस। पर रासलीला में पर भी प्राइवेट पार्ट्स तो कोई टच नहीं करते प्रभु जी। तो कृष्णा तो कोई नहीं, वो तो जस्ट एक पार्ट है। माय पॉइंट वहाँ पर गोपिलों का भाव दिखाया गया है प्रभु। वहाँ पर गोपिलों को दिखाया कि उनके पांव और मेरे शरीर से, मतलब अपने गुप्त शरीर से तुलना किया है कि कठोर हैं, ये है वो है, मतलब बहुत कुछ है जिसमें विकार आना संभव है, लेकिन फिर भी वहाँ श्रवणकर्ता को ऐसा नहीं होता है, तो उनको भी क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो सुदृढ़ विश्वास से ये अगर कोई श्रवण करेगा, श्रद्धा पूर्वक अगर कोई रासलीला का श्रवण करेगा, तो काम पूरा जीरो हो जाएगा। हाँ, तो फिर वो श्रद्धा से और प्रभु शुद्ध वैष्णव से। हाँ, वो तो है। और तो फिर क्या हो जाएगा? ये शून्य हो जाने से फिर वो भी रामानंद राय जैसे सेवा कर सकता है, जिसका ये सब एग्जाम्पल। শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই সম্পর্কে বলেছেন, যিনি অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা সম্মিত হয়ে এই रास पंचाध्याय, राशे पंचाध्याय, आई डोंट नो व्हिच चैप्टर का बात कर रहे हैं, रास में पंचाध्याय, कोई रास का एक सेक्शन होगा शायद। कितना चैप्टर है 10th कैंटो में? 84 89 कितना चैप्टर्स है? 5 चैप्टर है प्रभु इसका, रासलीला का। नहीं 29 में से कुछ होगा, 29 से होगा, मतलब 34 35 ऐसे कुछ होगा। ব্রজবধূর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ক্রীড়া বর্ণনা শ্রবণ করেন বা বর্ণন করেন, সেই ধীর পুরুষ ভগবানের প্রতি পরাভক্তি লাভ করে হৃদরোগ রূপ জড় কামনাকে शीघ्र ही दूर करें। तो जरो कामना के किनके साथ तुलना किया गया है? हृदय माने हार्ट डिजीज से ना, ये पूरा खत्म हो जाएगा हार्ट डिजीज। शुद्ध वैष्णव যখন শ্রীমদ্ ভাগবত বর্ণনা করেন এবং অপর শুদ্ধ বৈষ্ণব যখন তা শ্রবণ করেন, তারা উভয়ই তত্ত্ববেত্তা মহাপুরুষ, তারা উভয়ই চিন্ময় জগতে বিরাজ করেন, যেখানে জড় প্রকৃতির কলুষ তাদের স্পর্শ করতে পারে না। জড়া প্রকৃতির এই কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে শ্রীমদ্ ভাগবতের বক্তা
এবং শ্রোতা উভয়ই পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য সেবক রূপে তাদের স্বরূপ উপলব্ধি করে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হন। প্রাকৃত সহজিয়ারা পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাস এই জড়জগতের সাধারণ স্ত্রী পুরুষের আচরণের মতো বলে মনে করে, দুর্দশা করে যে রাসলীলা শ্রবণ করার ফলে তাদের রোগগ্রস্ত হৃদয়ের কাম বাসনা দূরীভূত হবে। কিন্তু যেহেতু তারা ভগবত ভক্তির বিধি নিষেধগুলি অনুসরণ করে না, পক্ষান্তরে সাধারণ নৈতিক বিধি নিষেধগুলি পর্যন্ত লঙ্ঘন করে, তাই তাদের রাসলীলায় মনোনিবেশ এক অর্থহীন প্রচেষ্টায় পরিণত হয় এবং ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের আচরণের অনুকরণ করে তারা নিজেদের সর্বনাশ সাধন করে। প্রাকৃত সহজিয়াদের এই জড়বুদ্ধি বরদাস্ত না করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বিশ্বাস শব্দটি ব্যবহার করেছেন। श्रीमद् भागवत। यस सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु यहाँ पे देख, ये जो सहजिया लोग हैं वे लोग ये चीज तो सोचते हैं कि रासलीला सुनने से उनके हृदय की काम वासना कम होगी, लेकिन तब भी वो इसका नकल करने लग जाते हैं। प्लस और एक काम करते हैं, ये लोग बेसिक चीज नहीं फॉलो करते हैं। लिखा है ना, अभी हम लोग पढ़ा। इसके पहले आया था प्रभु कि ये एक सेकंड अशोक प्रभु, नया केस मत लाइए, पहले ये वाला केस जो चल रहा है इसको सॉल्व करते हैं। प्रभु बेसिक चीज मतलब विधि विधान, जो जप करना, मंगल ये आरती सब नहीं करना, करता है, ये सब नहीं करता है। रासलीला को श्रवण करता है तो उसमें क्या फल होगा? फिर बाद में क्या उसको कॉपी भी करता है, ये भी लिखा है ना। हाँ कॉपी करते हैं। हाँ, फिर तो सर्वनाश होगा। हाँ या ठीक है। यस अशोक प्रभु। ना, ये पहले भी हम लोगों ने पढ़े हैं कि कॉमन पीपल में इस चीज की आलोचना नहीं होनी चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। एकदम माने ऐसा जो भागवत पाठ कराता है, भागवतम सप्ताह कराता है, तो डायरेक्ट इसी में ज्यादा चर्चा कराते हैं, लोगों को इंटरेस्टिंग कराने के लिए। उसमें भी टचिंग है, किसिंग है, मतलब बहुत कुछ है जो गोपी लोग के साथ उनका व्यवहार है, तो इस चीज को कॉमनली नहीं देखना। हाँ, मिसअंडरस्टैंड करेगा ना साधारण व्यक्ति। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया होगा, समझ रहे हैं आप? आमदनी अठन्नी, भक्ति कुछ मिलेगा नहीं, उल्टा जितना पुण्य है वो भी पाप हो जाएगा। यस संगनी श्याम पे माता जी। यस प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अभी आवड़ा में हम लोग जब आ रहे थे तो देखिए ये सहजिया टाइप के थे, मतलब पूरा पहने थे धोती, पूरे यहाँ पर मतलब तुलसी माला, कंठ में तुलसी माला, सब कुछ ठीक था, लेकिन चलने का ढंग बिल्कुल मतलब बॉडी लैंग्वेज एकदम चेंज था, अजीब टाइप का, जैसे चले थे गोपी भाव में चले। समझ में आगे जो प्रभु बोलते हैं लोग वही लोग इस स्निग्धा से बोले देखो प्रभु जी इस बारे में बहुत अच्छा, मतलब चलने का ढंग भी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है हम लोग का, मतलब अजीब टाइप का चलते हैं, जैसे लगता है समझ में नहीं आता, लेकिन पढ़ने की वजह से समझ में आ गया इन लोग वही चीज है। हरे कृष्ण, वही बता रहे। यस शशि माता जी। तो मुझे ये लाइन जो है, अभी प्राकृतिक सहजियों की ऐसी आदतों का निषेध करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने विश्वास शब्द का प्रयोग करके उनकी भौतिक बुद्धि को अलग कर दिया, इसका मतलब नहीं समझ में आया। सो देखिए माने विश्वास का मतलब क्या है? जस्ट हम अगर बोलेंगे हम हमारा भगवान के प्रति नो, विश्वास, श्रद्धा, दिस हैज टू बी बैक्ड अप विथ साधना। ओके, उसीलिए ऊपर जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी सब बोला है। सिर्फ विश्वास बोलने से, मुंह से बोलना विश्वास है हमारा, बहुत हम रासलीला पे बोलने से नहीं होगा। विश्वास है तो क्या आपका साधना भी हो रहा है? जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना, आप लोग तो कंठी माला पहन के, जप माला पहन के जप करते हैं, हम लोग तो मन ही मन में ऐसे बोलते रहते हैं। ऐसा है? आप लोग को सुना है ऐसे लोग बोलता है? आप लोग तो हरे कृष्णा तिलक पहनते हैं, हम लोग तो ऐसे करते रहते हैं मन ही मन में सारा दिन। हम लोग 16 माला करने में हम लोग का बैंड बज जाता है, उन लोग सारा दिन जप करते हैं मन ही मन में, वो भी सोचिए कितना एडवांस्ड है। और 4 नियम पालन भी नहीं करते, तो ये मुंह से बोलना विश्वास, इसलिए विश्वास भी तो झट से नहीं होता है ना प्रभु, तिल तिल करके जमा होता है, उसके बाद ही विश्वास होता है। हाँ, सो विश्वास हैज टू बी बैक्ड अप विद साधना, विद आचरण, विद ये सब को अनुकरण करेगा तो फिर क्या विश्वास है? क्या समझा? अगर व्यक्ति सोचिए ये सब को देखकर, ये सब सुनकर खुद रासलीला करने लग गया तो समझ में आ जाएगा ना क्या उनका विश्वास है। तो वे लोग बोलते हैं कि हम लोग आपकी तरह दिखावाबाजी नहीं करते, हम लोग मन ही मन में जप करते हैं। हाँ सोचिए, मन ही मन में गायत्री करने में कितना डिफिकल्ट होता है। इन लोग हरे कृष्ण महामंत्र सब सारा दिन वो भी बोलते हैं, हम तो हमेशा कंटिन्यूस करते हैं। कोई आगे बोलता है जाने ना सब समय कोई, बाप रे बाप, हरिदास ठाकुर भी थोड़ा रेस्ट लेते थे 2 घंटा, ये तो सब समय करता है।
প্রাকৃত সহজীয়দের এই জড়বুদ্ধি বরদাস্ত না করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বিশ্বাস শব্দটি ব্যবহার করেছেন। इसका और आगे आएगा शशि माता जी। श्रीमद् भागवते श्रील सुखदेव गोस्वामी বলেছেন, नैतात् समाचरे जातु मनसापि हि अनीश्वरः विनश्यति आचरन् मोध्यात् यथा रूढो अब्दीजां विश्वं विषम। পরমেশ্বর ভগবান ব্যতীত অন্য আর কারো শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত রাসলীলার অনুকরণ করা উচিত নয়। सो अगर रासलीला को अनुकरण करना चाहता है तो कौन कर सकता है मैक्सिमम? भगवान खुद ही अपना रासलीला को अनुकरण कर सकता है। যদি অজ্ঞাতবশত কেউ তা করে তাহলে তার সর্বনাশ হবে। प्लस उस दिन मैं प्रवचन में भी सुन रहा था, ये जो डांडिया डांस होता है, ये इसमें भी अगर कोई सोचता है कि वो मैं गोपी बन गया या मैं कृष्ण बन गया और ये सब जो हो रहा है, so that is also very much not recommended. যদি অজ্ঞাতবশত কেউ তা করে তাহলে তার সর্বনাশ হবে। ঠিক যেমন মহাদেবকে অনুকরণ করে কেউ যদি সমুদ্র মন্থন উত্থিত হলাহল পান করে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ये तो कोई करता नहीं है। बाकी हाँ, सब विष तो कोई नहीं पीता। बाकी सब अनुकरण करता है। महादेव जैसा वेशभूष करेगा, महादेव जैसा वो कहीं शास्त्र में लिखा है महादेव वो गांजा कहीं दिखा है आपने? कहीं शास्त्र में पढ़ा है? हलाल के बारे में लिखा है। कलकत्ता में रसगुल्ला का कंपटीशन होता है प्रभु, लेकिन मिर्ची खाने वाला रस कंपटीशन कभी नहीं देखा प्रभु। अभी हम लोग का यहाँ पे कावड़ का वो लगा हुआ है, तो वहाँ पे खाली गाना चलता है, भांग गांजा भांग। पूजा कल बोल रही मम्मी हम सुनते सुनते परेशान हो गया, ये लोग क्या लगा रखे हैं शंकर जी के लिए। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এইখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, হরি আসামি বলো হরি হরি। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जय। गौरव भक्त वृंद की जय।